Hello, hi everyone. Welcome back to another episode of Late Night Talks. Today we have a very special person with us. Before I introduce him, the way I know him or the way I have examined him throughout the college doing stuff, Paritosh, welcome firstly to the show. Thank you, Naveen. And I would request you to give it a thought and then please try describing yourself in 3 4 lines. How do you want the world to see you? So, मतलब it's I have it laid out. I 3 4 lines तो ज्यादा हो गई. I Okay. can I can name Okay. myself out in 2 3 words only. Sure, sure. So so I am an overthinker, overachiever, and overperformer. बस यही है. So I perform too much, but then I overthink and I try to overachieve. ये तीनों चीजें नहीं होती है मुझसे. Okay. Right. Nice. It starts with overthinking. सीधा So, mental health पे Paritosh, attack हो रहा है. this actually is really interesting. The 3 words you have chosen, we'll find it out, like why you have chosen these 3 words to define yourself. But a lot of people in our generation, right, mid 20s, are quite fond of being in this category, right? Firstly, Yeah. overthinking. So, when did you realize that you belong to this category? You overthink. Like, how did you figure out that you are a overthinker? अब मतलब I tell you, everyone thinks a lot. It's just कि लोग ना thoughts right place पे नहीं होते हैं, so they don't realize that they're thinking too much. If they're thinking at the things that they matter much, so Hmm. and it is very rare for a person to not think anything. Just give me a minute. ये pause कर सकते हैं? I think आ ही गया मेरा delivery. Sure, sure, sure. Okay, so Yeah. before we proceed ahead, let me briefly provide a formal intro of Paritosh. So I have had the privilege of working with him as a part of EDC, organizing events and a lot of things. ED's Entrepreneurship Development Cell, UIT Chandigarh. And Paritosh is graduated 2016 2020 batch with specialization in electronics and communication engineering from UIT Chandigarh, Punjab University. And he has been active in a lot of things, starting from EDC to a lot of things, which we'll figure it out. And currently, he's working as a program manager at Milo. We'll find out what Milo is and why did he choose to join Milo. A lot of things. So, Paritosh, back to the curious thing, the overthinking part. Sorry, you were sharing something on overthinking. Please go back. Yeah. So basically, I was saying कि everyone overthinks. It's just people don't realize that they do think on important things, or they don't actually think on important things a lot. So इसलिए उनको ना लगता नहीं कि वो ज्यादा think करते हैं. And पर Hmm. अभी की जनरेशन में ना सबको लगता है कि वो ओवर थिंक करते हैं. तो एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि राइट अब सेल्फ बिलीव, सेल्फ राइचियसनेस बहुत ज्यादा आ गया लोगों के अंदर. तो एवरीवन थिंक्स एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाटएवर दे डू, व्हिच इज लाइक राइट टू सम एक्सटेंट. सही है, कोई इतना खराब बात नहीं है. मेंटल हेल्थ तो ठीक रहती है Okay. इस बात पे. सो वही मतलब दैट इज द सेम फीलिंग दैट आई हैव बिल्ड इनसाइड कि आई डू ओवरथिंक अ लॉट. सो एंड दैट टू Hmm. बिकॉज Naveen will, I think, थोड़ा सा relate also, like everyone will relate, Right. and I know me as well, in the sense कि Hmm. कॉलेज में हम बहुत कुछ किया करते थे, Right. Right. कुछ नहीं लगता था. अब जॉब में आके कुछ नहीं करते हैं, पर लगता है, राइट? आफ्टर अ फुल डे जॉब, इवन दो यू ओनली वर्क फॉर लेट्स से 10 hours, लाइक 10 hours इज Right. आल्सो मैथ. उसके बाद भी लगता है कि यार और एनर्जी बची नहीं है. कॉलेज में तो 5 घंटे पढ़ने के बाद 4 चल रहा है, अपना खुद की इंटर्नशिप चल रही है, मतलब 18 घंटे काम करने के बाद भी लगता था बहुत टाइम पड़ा है. तो वो है कि Hmm. वो उस टाइम थिंक नहीं होता था, काम बहुत था. अब है कि अब एवरीथिंग थिंक्स अ लॉट, राइट? अब कुछ भी करो तो दिमाग में यही चलता है यार कि क्या चल रहा है. अब जैसे ये भी चीजें, ये ओवर थिंकिंग ही हो रही है मेरे, कि यार इतना सारा टाइम है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और करने का मन नहीं करता है करने का. सो दैट Right. दैट इज समथिंग. एंड आई इट इज जस्ट माय इनसाइड कि आई कीप ओवर थिंकिंग लाइक कॉन्स्टेंटली. तो Hmm. एंड सम टाइम इट हेल्प्स आल्सो, मतलब मोस्ट टाइम इट हेल्प्स, बट कुछ कुछ टाइम स्टक हो जाते हैं, पर चलता है. नॉर्मल चीजें. Right. Right. And Paritosh, I think it is as far as overthinking is concerned, I guess हमारी generation के साथ comparatively ज़्यादा है as compared to our parental generation. यस. या वो तो है Uh, डेफिनेटली. एक्चुअली ना, जनरेशनल प्रॉब्लम नहीं है. इट्स लाइक कि कितनी लाइफ इजी हो रही है, उसके हिसाब से हम
ओवरथिंकिंग इज अ प्रॉब्लम दैट वी क्रिएट ना, हम कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कोडिंग का एग्जांपल लो, राइट, कोडर्स करते हैं क्या, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खुद ही सॉल्व करते हैं, तो वही वाली चीज है, वो एकदम वो न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ जॉब्स है। पहले लोग क्या हाँ करते थे, बस लाइक ब्रिकलेयर एक जॉब है, जब तक रोड नहीं है तो बनाएंगे ना, रोड नहीं टूटेगी नहीं बनाएंगे, रोड तोड़ के वापस नहीं राइट बनाते हैं, या फिर उस रोड पे वापस रोड नहीं बनती ना, तो प्रॉब्लम जनरेट होती थी फिर सॉल्व करते थे, तो इसलिए कम होता था। हमारे पेरेंट्स के पास बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी पर कम, राइट, मतलब कि यू अंडरस्टैंड राइट, क्वांटिटी कम है पर राइट वो बड़ी बड़ी है। लाइक लेट्स से आई केम फ्रॉम अ लाइक मिडिल क्लास फैमिली, मेरे उनके जो पेरेंट्स थे, राइट, मेरे दादा या परदादा होंगे, ठीक है, वो लोअर मिडिल क्लास भी होंगे, या फिर लेट्स से पॉवर्टी के अंदर ही होंगे, घूम फिर के इंडिया सारा पॉवर्टी में था, तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग थी। उनकी प्रॉब्लम थी खाना लेकर आना है, लाइक इतना पैसा कमाना राइट है कि खा सके इंसान, पर वो एक खा प्रॉब्लम सके है, उनके पास हजार प्रॉब्लम नहीं थी सोचने को। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम्म खाना तो हमारे लिए वर्च्यू है, राइट। अभी हम्म ईयरफोन्स ही ले लो, राइट, ईयरफोन्स मेरे चल नहीं रहे थे, मैंने बोला ऑर्डर कर लेता हूँ ब्लिंकिट से, राइट, ये सोचा नहीं हम्म क्या एप्लीकेशन आएगा या फिर कितना बाहर जाके लाना पड़ेगा, बस ये जल्दी से ऑर्डर कर लेता हूँ और आ गए ईयरफोन्स। तो ये हमारी हम्म अब प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई, अब छोटी प्रॉब्लम कैसे बनाए, तो वो है, तो वो प्रॉब्लम्स हम्म बनती है, उसी पे ओवर थिंक होता है, एंड बिकॉज ओवर प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, बहुत सारी है और छोटी छोटी है, इसलिए यू थिंक अ लॉट राइट हर चीज को सॉल्व करने के लिए। एंड ऑल्सो वी आर लाइक समहाउ लाइक अनमोल का ना अभी मेरे को इंट्रो एग्जैक्टली पता नहीं, आई नो यू आर लाइक डेटा वाला पर्सन, राइट, सो अनमोल आर यू सिमिलर कैटेगरी, टेक पर्सन? Yeah. अच्छा, सो लाइक वी एवरीवन लाइक टू ऑप्टिमाइज ऑन थिंग्स ना, यही है, लाइक डेटा ले लो, राइट, अपना एल्गोरिथम लिखना है तो हर काम भी ऐसे ही करना है कि फुल ऑप्टिमाइजेशन से काम करेंगे, आरओए बेस्ट आनी चाहिए अपने काम की। तो ये उसको ओवर थिंक करने के साथ ये एक और एक फैक्टर जोड़ दोगे, काम भी बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए, काम होए ना होए बढ़िया तरीके से होना चाहिए, लीस्ट एफर्ट करके। तो दैट इज द ओवर थिंकिंग, एंड मतलब But I think मेरा आउटकम I या think overthinking isn't a problem. Problem is what are you overthinking? एग्जैक्टली वो यार, वो है, इतनी सारी चीजें हैं। एंड फिर ना हम्म बुरा कुछ नहीं आता मेरे मेरे लिए, द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट रॉन्ग इन दिस इज कि रात में कभी भी नींद नहीं आती है, राइट, तो वो पता नहीं हम्म चलता है, यू डोंट फील हम्म टायर्ड ऑल्सो, या फिर ये भी नहीं होता यार नींद क्यों नहीं आ रही है, पर लाइक 2-3 बज गए, अब होता है अच्छा वो शिट अभी तक नींद नहीं आई है तो क्या करें अब नींद लाने के लिए, फिर बाद में जाता है वो दिमाग में ही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम्म सो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई फिगर्ड आउट। Right. And Paritosh, I think some part of the overthinking is kind of subconscious, right? See, there is a conscious part of it, or there is a subconscious part of it, which is ironically out of a bit out of your control, right? So that is how people see. Like I have had the opportunity to talk to some of the people कि भाई इतना क्यों सोचते हो, right? Because I have been through that stage and मतलब अभी भी चल रहा है वो parallelly, but they say कि यार वो backend में चलता रहता है, it is not something we are doing consciously, वो चल रहा है, right? So is it that most part of it is subconscious or we do it consciously, like how do you say it? Totally dependent on what is like what stage you are at, right? If you are very clear of things, then you will always do something consciously, right? अगर तुम clear ओवर मत think तो करना ही है, और ओवर थिंक भी करना ही है क्योंकि माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है अभी, लाइक फॉर अस पीपल, राइट। सो वो है कि बट ये कि अगर इफ यू व्हाट यू आर थिंकिंग आल्सो इज क्लियर, सोच किस चीज पे रहे हो, देन इट इज कॉन्शियस। इफ नहीं सोच रहे हो तो सबकॉन्शियस इज नॉट द एग्जैक्ट राइट वर्ड, सबकॉन्शियस का मतलब होता है कॉन्शियस का ही एक पार्ट, पर सब इट इज मोर लाइक कि इट इज अनक्लियर, राइट, तुम उसके Right, बारे में सोच जा रहे हो तो क्वेश्चन ही नहीं पता अभी तक, क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, आंसर तो बाद में सोचेंगे, राइट। सो right. दैट इज आल्सो अदर थिंग, तो वो सबकॉन्शियस थिंग दैट यू डिस्क्राइबिंग इज दैट, राइट। सो इफ लाइक क्लैरिटी है, मतलब लेट्स सी इलोन मस्क क्या सोचता होगा, राइट, समझो इलोन मस्क क्या सोचता है, उसके पास क्लैरिटी है दुनिया की, Hmm, ठीक है, वो hmm, सोच रहा है कि मेरे को करना कैसे है, उसको तो क्लैरिटी है उसको hmm. करना क्या है, राइट। Right. एंड इलोन मस्क, चलो ये मैंने भगवान एग्जांपल ले लिया, थोड़ा रोबोट है वो, Hmm, सीईओ क्या सोचता होगा एक कंपनी का, राइट, उसको कुछ एक अच्छी क्लैरिटी होती है कि मेरे को ना अगले 2 साल 5 साल में क्या करना है, ठीक है। सो बट उसको अभी है कि करना कैसे, तो उस चीज पे ओवर थिंक करेगा, कंपेयर टू लेट्स से फाइनल ईयर स्टूडेंट, ही हैज right. प्रिपेयर्ड कि मेरे को, मैं तो रेडी हूँ बैठने के लिए, और लेट्स से उसकी जो फर्स्ट ड्रीम जॉब थी वो उसको प्लेसमेंट उठा के लेकर नहीं गई, अब उसके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं है अब मैं करूँ क्या, तो वो पहले पूछ सोचेगा कि करना क्या है, फिर बाद में सोचेगा वो करना Hmm, कैसे है, राइट। सो hmm, वो दोनों चीजों से सोचनी पड़ रही है, सो दैट इज द थिंग, वो डिपेंड्स ऑन लाइक डिफरेंट स्टेजेस अभी क्या है, hmm, राइट। आई ऑलवेज फील वी आर एट द कांस्टेंट लेवल, हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, हमारे एज वाले तो, हमारे दोनों, hmm, क्योंकि हमारा सिर्फ
इट्स नॉट जस्ट अबाउट जॉब एंड वो चीज, अपने 10 चीजें और चल रही है, रिलेशनशिप और चल रहा है, घर वाले अलग चल रहे हैं, हेल्थ एक अलग चल रही है, एक नई चीज एक बन गई है। लाइक मैंने कॉलेज में कभी फिगर आउट नहीं करा था मेरी हेल्थ कभी खराब होगी, हेल्थ अपना अलग चल रहा है, फिटनेस अलग चल रहा है, ठीक है। ये हम्म सारा चीज मेंटेन करते करते बीच में ये चल रहा है कि अब हेल्थ का क्वेश्चन है, उसको आंसर कैसे करें, राइट। उसका मुझे क्वेश्चन पता है हम्म क्या है, पर उसका आंसर कैसे करें, टाइम नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है। हम्म पर उधर हम्म जॉब का क्वेश्चन ही नहीं पता है, तो क्वेश्चन कैसे आंसर करें। तो वो है, जॉब बढ़िया है, हम्म राइट, पर और बढ़िया कैसे करना है, ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दिमाग में। सो वो राइट दैट इज मोर लाइक ओवर थिंक प्लस ओवर अचीव का एक मिक्स है, वो वहां पे घुसा हुआ है हमारा। And also Paritosh, as you touched a little on this as well, it is kind of ironical कि अपनी जो parental generation थी उनके पास obviously responsibilities ज्यादा थी, the life was tougher, the struggle was to put food on the table, right? हमारे पास the life is constantly easier, becoming easier throughout the generations, and हमारे पास चीजें इतनी responsibilities भी नहीं है, right? We are comparatively free, but instead of that we are more overthinking, right? Responsibilities कम है, life easy है, but it is increasing the level of overthinking, right? It is also kind of Yeah. ironical, right? So it is not featuring or I would say emerging from responsibilities, ये conclude कर सकते हैं हम लोग, और it is not emerging from the toughness of life, right? It is something else, right? Kind of ironical. डिस मतलब थोड़ा डिस है, इट इज नॉट नॉट एग्जैक्टली दैट, राइट। मतलब तो इसके अंदर से अगेन वेरी वेरी इन द सेम बेसिक फील्ड, मतलब पूरा पॉलिटिकल आंसर है, लाइफ सबकी टफ होती है, प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती है, हर जनरेशन की प्रॉब्लम अलग है, सब अलग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो Right. वो इट इज नॉट इवन, मतलब पूरा ना एक चेन बना हुआ है। अर्लियर इफ यू वर नॉट एबल टू लेट्स से, यू डिडंट हैव मनी और अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाते थे, देन यू वर पार्ट ऑफ लेट्स से 90%, राइट। पर Hmm. अभी क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा ग्रुप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक इन जनरल फॉर इंडिया का। पर अभी क्या है कि इफ यू डोंट हैव मनी एंड यू नॉट एबल टू डू गुड एजुकेशन, देन यू लेफ्ट बिहाइंड, राइट। अब तो इतना स्केयर हो Right. रखा है पूरे मार्केट के अंदर से, एआईएमएल ये Hmm. Hmm. के साथ काम करना है, वो करना, देन तो यूर लेफ्ट बिहाइंड। बहुत बड़ा, इसको भी पार करना इज समथिंग अ वेरी ह्यूज टास्क। अच्छी, अब अच्छी एजुकेशन लेनी है, राइट, कोडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, वो पहले नहीं थे प्रॉब्लम। दिस इज अ बिगर Hmm. प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। तो ये है, दिस जस्ट इट्स अ प्रिविलेज प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एंड दैट विल ऑलवेज कीप ऑन हैपनिंग। अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम हो रही है, मे बी लाइक नेक्स्ट जनरेशन या उसकी नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी नहीं, राइट। Hmm. सो Hmm. जैसे वन ऑफ द प्रॉब्लम इज वर्किंग, काम करना एक प्रॉब्लम है ना, काम क्यों करते हैं, ताकि पैसे आए, पैसे से हम आगे चीज करेंगे। मे बी लाइक नेक्स्ट Right. जनरेशन में सब कुछ इतना हो जाएगा कि काम करने की Hmm. जरूरत ही ना हो, राइट। Hmm. देन Hmm. एवरीवन डज काम इन द सेंस, वर्क तो करना ही है, पर एवरीवन डज व्हाट दे लव rather than what they want to earn, राइट। सो Hmm. वो फर्स्ट वो चीज खत्म हो जाएगा। लेट्स से लाइफ बिकम सो इजियर कि आपको Hmm. मैक्सिमम चीजें फ्री में मिल जाए, दैट इज द आइडियल Hmm. वर्ल्ड, राइट। मैक्सिमम चीजें फ्री Hmm. में मिल रही है, आपको रहना फ्री में मिल रहा है, आपको खाना फ्री में मिल रहा है, ठीक है, आपकी Hmm. जितनी भी चीजें हैं और सब फ्री में मिल रही है, अब उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई है। Hmm. सो Hmm. दैट इज व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू। लेट्स से ये 100 इयर्स में मोस्ट प्रोबब्ली हो ही जाएगा, और 100 इयर्स तो कैसे, उससे मैं जिंदा ही नहीं रहने वाला, पर ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली इसके अंदर। तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स अलग आएगी, वहां पे ये होगा मोर क्रिएटिव कौन है बंदा, राइट। सो वहां पे Hmm. ऐसे आने वाली प्रॉब्लम कि हु, मतलब Hmm. वहां पे देयर विल बी रादर अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक लेट्स से उस साइड के एरिया के अंदर ना, जो क्रिएटिविटी वाली चीजें हैं, आर्ट, म्यूजिक, दिस इज समथिंग दैट आई अगेन ओवर थॉट एंड फिगर्ड आउट कि वो वाली जो चीजें हैं ना, दैट विल बिकम लाइक द बेस्ट। वो टॉप ऑफ Hmm. द टॉप चीज हो जाएगी दुनिया की, कि सबसे Right. अच्छा गाता कौन है, राइट, सबसे अच्छा ड्रॉ कौन करता है। सो दैट विल बिकम Hmm. अदर प्रॉब्लम, वहां पे फिर वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, वहां पे वैल्यूएशन शुरू हो जाएगी लोगों की उस बेसिस के अंदर, क्योंकि अब Hmm. वो बेसिक चीजें बची नहीं है कि कमा कौन Right. रहा है सबसे ज्यादा। ये उस Hmm. आई थिंक मनी विल ऑलवेज बी अ करेंसी, तो करेंसी विल बी लाइक कि जो सबसे अच्छा ड्रॉ कर रहा है वो सबसे ज्यादा खरीद रहा है, समथिंग ऐसे ऐसे चलता रहेगा। Hmm. पर ये नेसेसिटीज वाली चीज, तो फर्स्ट इट वाज कि नेसेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सॉल्व हो गई है। अब ये नेसेसिटी ऑफ क्वालिटी है कि अब वो फूड की क्वालिटी कितनी अच्छी, रहने की क्वालिटी कितनी अच्छी, उस पे अभी हम बैठे हैं। Right. हम Hmm. लोग लाइक अपने हॉस्टल से निकल के, वो छोटे से वो, मतलब पीयू का हॉस्टल देखा है ना सबने, तो वो पता ही है। तो Right. उस हॉस्टल से निकल के देन यू आर कमिंग टू लेट्स से 1 आरके में, नाउ यू गोइंग टू 1 बीएचके में, राइट। फिर दिस इज लाइक Right. क्वालिटी वो इंक्रीज हो रही है, राइट। सो तो अपना वही देसी जूता पहन के, नाउ यू वेयरिंग पूमा, देन यू विल वेयर एडिडास, सो ऐसे ऐसे निकल के, दिस इज हाउ वी आर Hmm. प्रोग्रेसिंग। तो वी आर वर्किंग ऑन Hmm. क्वालिटी ऑफ लाइफ, वंस द क्वालिटी स्टैंडर्डाइज एंड इट्स एट द बेस्ट, पीक बेस्ट, तो Hmm. फिर वो खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम, वो फिर उस पर कोई नहीं सोचने Hmm. वाला, नो वन केयर्स।
ऐसे आ जाएगा उस चीज के अंदर। एंड आई थिंक बहुत छोटी छोटी कंट्रीज तो कर ही दी है ऑलरेडी जिनके पास अच्छा है। सो राइट उधर तो राइट मतलब एटलीस्ट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ये सब हो रहा है, तो इट्स नॉट वेरी फार, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इज जस्ट इन द सेंस कि अगर ये चीज खत्म हो गई तो लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं करने को, तो बस इसलिए डिफिकल्ट है। राइट। लोग हैं पीपल इन पावर, तो वो अलग बात है। एंड वो अपॉर्चुनिटीज के लिए बोलते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है 2 दिन, राइट। या तो आई थिंक दैट इज द केस विद प्रॉब्लम्स एज वेल। अभी वाली एलिमिनेट होंगी तो नई वाली आ जाएंगी। अभी जो प्रॉब्लम्स या हमारी चल रही है मिड 20s में, वो हमारे पेरेंटल जनरेशन की शायद नहीं थी उनके मिड 20s में, राइट। तो ये हम्म इवॉल्व होती रहेंगी। एंड आई थिंक हाँ, ये मतलब खत्म नहीं होने वाली, चेंज होती रहेंगी एज प्रायोरिटीज चेंज, द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स विल चेंज, द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रगल विल चेंज, बट इट विल स्टिल बी देयर, राइट। एग्जैक्टली। और एंड जैसे फर्स्ट वर्ल्ड हमारे प्रॉब्लम पेरेंट्स जैसा कहते हैं ना, कि ये भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और हम अपनी अगली जनरेशन को बोल रहे होंगे। एग्जैक्टली यही है। यू अंडरस्टैंड, जैसे अमेरिका में जो प्रॉब्लम चल रही है लेट्स से, ठीक है, और इंडिया में वो प्रॉब्लम सेम ला के रखो, लोग तो भाव भी नहीं देंगे। ठीक है, कनाडा में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो कनाडा को कुछ एरियाज को सेटल स्टेट बोलते हैं क्योंकि ना वहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो इतना बड़ा डिस्पैरिटी नहीं है। तो लेट्स से कनाडा में ना, एक मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, एक लड़ाई चली जा रही है कि वही ही शी वाली लड़ाई चली जा रही है प्रेफरेबल प्रोनाउंस की। यहाँ इंडिया में लाके देखो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, नो वन केयर्स। और इंडिया तो चलो फिर भी अभी कुछ कुछ दिल्ली में ला दोगे लोगों को फर्क पड़ेगा, राइट, गांव में ले जाओ किसी को नहीं पड़ने वाला। ये चीज अफ्रीका में ले जाओ, हाँ। अफ्रीका में तो बोले, वो बोल देंगे कि तुम पागल हो, यहाँ पे पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए, यहाँ पे दवाइयां नहीं है, तुम लोगों को ये चीज की पड़ी है, ही शी करना है, मेरे को यू प्रेफर्ड प्रोनाउन से बोलना है। एंड इट इज नॉट कि राइट। वो चीज गलत है, इट इज कि ये प्रॉब्लम ना अभी नहीं टॉलरेट हो सकती, क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे करके लोग जिंदा या मरने वाले नहीं है। तो वो वाला है, धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट भी हम ही करेंगे, सारी प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं, तो हम करते रहेंगे धीरे धीरे क्रिएट। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारा मारा पीटा करा, ठीक है, इंडस्ट्रीज बना दी बहुत बड़ी, अब इंडिया में बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, अब आ रहा है ये इंडस्ट्री तो दुनिया खराब कर रही है, अब इसको ठीक करो इंडस्ट्रीज को। अब राइट। एफिशिएंसी वहां कम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ढूंढ रहे हैं उसको कैसे करने के लिए, वो सोलर लगाओ, सोलर करो। हाँ। अब कुछ टाइम पे आएगा सोलर से कुछ खराब होता है, क्योंकि सोलर के भी कुछ कॉन्स है, अब उसकी जगह पे कुछ और ढूंढने की कोशिश करो। ये दिस विल बी अ कांस्टेंट हाँ। रेवोल्यूशन, चलता रहेगा। उसमें ये है कि विल क्रिएट समथिंग, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो बहुत बड़ी हो जाएगी। यही है बस, हाँ। सीएफसी ओजोन वाली थ्योरी है ना, बस वो एग्जैक्टली वही रहने वाली है। सीएफसी से बहुत अच्छा होता था, लोगों को पड़ा, अरे वहां छेद होने लग गया, तो फिर लोगों ने बहुत शोर मचाया, सीएफसी बंद कर दी, अब ओजोन ठीक हाँ। हो गया, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता ओजोन से। मैं लिख के देता हूँ, हम्म। अगले 10 साल के अंदर ना हमारी बुक्स के अंदर ओजोन का मेंशन भी नहीं होगा। और मुझे याद है मैं इतना बोल पढ़ता था ओजोन के बारे में, 5th क्लास के अंदर, ओजोन लेयर, किसी को फर्क नहीं पड़ने राइट। वाला ओजोन का 10 साल में, क्योंकि अब वो प्रॉब्लम ही नहीं हाँ। एग्जिस्ट करती ना, खत्म कर दिया उस हम्म। प्रॉब्लम को। तो हम्म। ये दिस विल बी लाइक एवर इवॉल्विंग थिंग। मतलब इवॉल्विंग तो क्या है, मतलब ये डिफॉर्मेशन है, ये तो नेगेटिव चीज है, इवॉल्व नहीं होनी चाहिए, डिवॉल्व होनी चाहिए, तो ये हमेशा होती रहेगी, राइट। बट हम्म। आई 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 फील दिस दिस इज मतलब कि कोर है ह्यूमन लाइफ का, दिस विल बी ऑलवेज बी देयर, दिस इज ओनली कांस्टेंट। हम्म। इट्स लाइक कि जब कोई नई चीज आती है ना, वी टेंड टू रियलाइज द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ इट्स फर्स्ट। हम लोग वो एंजॉय हाँ करते हैं, देन कम द फेज वी स्टार्टेड सीइंग द डाउनसाइड, अरे यार इसके ये नुकसान भी तो है। सेम वेंट विद द इंटरनेट, 90s में आया, 1990s, उसके बाद आया, देन मतलब 2000 का जो पहले 10 साल गए इट वाज रियली वेल। उसके बाद वी स्टार्ट रियलाइजिंग इसके क्या डाउन साइड्स हैं, लोग नुकसान कर सकते हैं। सेम गोज विद एआई, राइट। और सेम गोज हाँ एज यू मेंशन विद द इंडस्ट्रीज। पहले ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बूम आ रहा है, फिर पता लगा भैया एनवायरनमेंट भी तो खराब हो रहा है। सो दैट इज हाउ इट गोज, वी लेटर ऑन रियलाइज द डाउनसाइड ऑफ इट। शुरू में तो बहुत अट्रैक्ट करता है वो। राइट राइट। और एंड आजकल हम्म। निकल रहे हैं स्टार्टअप अच्छे, आई आई सीन लाइक स्पेशली हैदराबाद साइड ना, जैसे जिन जिन एरियाज के अंदर लोग काफी ऑलरेडी अवेयर है, सो दे आर ऑलरेडी वर्किंग, स्टार्टअप ही इसी पे काम कर रहे हैं कि आप सस्टेनेबली बिल्ड करो ना सब चीजें, क्यों बाद में जाके हम्म। अपने आप को चेंज करोगे। चेंज करने में सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है, स्टार्ट करने में कॉस्ट नहीं लगता, चेंज करने में बहुत कॉस्ट लगता है, क्योंकि वो हर्ट होता है, हम्म। कॉस्ट एकदम से चेंज आता है ना। तो हम्म। इसलिए कर रहे हैं काफी, मतलब आई सीन मेनी पीपल आर वर्किंग एट द वेरी फर्स्ट गो टू इम्प्रूव हम्म। दिस। तो हो तो रहा है काम इस पे, अब देखते हैं कितना करते हैं लोग, कितनी हम्म। मतलब हाउ मच दे गेट प्रमोटेड राइट। इस चीज के अंदर। Right. And I think the priorities also changes with the geography and demographics of the people. उसकी वजह से या प्रॉब्लम का जो सेट है वो भी चेंज हो जाता है। लाइक इफ यू सी द लिस्ट ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऐसा नहीं है उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग है उनके फोकस अलग है।
उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेबल पे खाना कैसे आएगा, राइट, या लाइफ Yes, yes. एक्सपेक्टेंसी कम है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, बट प्रॉब्लम स्टिल आते हैं, राइट। तो Yeah, definitely. तो Problems are there, and like हम्म, so this is there, yeah. हम्म। तो पारितोष, एज यू करेक्टली सेड कि भैया देखो प्रॉब्लम्स हम ही क्रिएट करते हैं, फिर हम ही उन्हें सॉल्व करने बैठ जाते हैं, फिर नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हम ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट करते हैं। तो वेयर डज इट एंड? इज देयर एनी प्लेस इट कैन एंड, और व्हाट कैन वी डू कि इसको एटलीस्ट मिनिमाइज कर सके? काम करना बंद कर दो, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। काम करना बंद कर दो, सब खत्म हो जाएगा। Just kidding, या just यू मतलब प्रॉब्लम्स हमेशा एंड हो ही जाती है, इट्स जस्ट कि नेक्स्ट प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, सो यू जस्ट मिनिमाइज ऑन थिंग्स, राइट? तो धीरे धीरे इट्स जस्ट कि इंटेंस द प्रॉब्लम दो तरह की होती है, इम्पैक्ट और इंटेंसिटी, राइट? तो कुछ चीजें होती हैं जो बहुतों को इम्पैक्ट करती है, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर उसकी इंटेंसिटी बहुत लो हो सकती है। लेट्स से राइट। बैड वाटर इज दिस। अभी जो मैं बोलते पोल्यूटेड वाटर आता है, इसका ना इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि लेट्स से डेली बिलियन लोग पानी पी रहे हैं, राइट? एक इंडिया में ले लेते हैं, 1.3 बिलियन लोग पानी पी रहे हैं, पर इंटेंसिटी राइट। बहुत कम है, क्योंकि पता नहीं चलता है पानी गंदा है। तो दैट इज वन प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने में तो बहुत ही लाइक इम्पॉसिबल चीज है, इसमें तुम कुछ सोचोगे मुझे इतने से लोगों के लिए इतना सा सॉल्व करना है, वो करने की कोशिश करोगे, इतने में कहीं और खराब हो जाएगा उस चीज के करने के लिए, या फिर कुछ और चीज नई क्रिएट हो जाएगी। तो दैट विल ऑलवेज टेक टाइम, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और जो प्रॉब्लम छोटी है, जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, उसमें यही है कि यू जस्ट नीड टू स्टॉप। मतलब प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज कम व्हेन यू आर पुशिंग योरसेल्फ टू डेवलप मोर। एक ऐप बना हुआ है, ऐप में कुछ बग्स आ रहे हैं, तुम बग्स सॉर्ट करने बैठ गए, ठीक है, पर वो एक बार सॉर्ट कर लिया तो ऐप क्लियर है, पर तुमने न्यू रिलीज निकाली, तो फिर बाद में वापस प्रॉब्लम आएगी ना। वो वही चीज है ना, तुमने कुछ नया करा तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, उसमें खुद की भी प्रॉब्लम है और पिछला कोड लिखा हुआ वो भी फाड़ दोगे तुम, ठीक है? मतलब ऐसे ही है, बैड कोड ऐसे ही बनता है घूम फिर के। तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम, इज कि इवॉल्व करते रहोगे तो प्रॉब्लम आती रहेगी, इट इज फाइन। आई फील अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो, स्पेशली इन लाइफ सेंस ऑल्सो, इन वर्क सेंस ऑल्सो, अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो, देन यू डोंट फाइंड सॉल्यूशंस, एंड देन फिर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी ना जॉब्स इन्हीं पे डिपेंड करती है, जो सीईओ होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल का मतलब यही होता है, यू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, बट इफ यू नॉट एबल टू डू दैट, तो फिर मतलब ज्यादा फायदा नहीं है ना उन उस चीज को करने का। एंड देयर इज ऑलवेज अ वे दैट यू कैन क्रिएट अ सॉल्यूशन दैट इज वेरी वेरी लाइक सिक्योर, मतलब कि बहुत कम लोगों को इफेक्ट करता है, बहुत कम इंटेंसिटी वाला है मतलब प्रॉब्लम। तो इट इज ऑलवेज अ वे करने का, बट दैट समहाउ रिक्वायर्स अभी के एनवायरनमेंट में टाइम, एंड टाइम इज समथिंग वी पीपल हैव लेस। So I have like dealt with startups starting से, कॉलेज से स्टार्टअप्स के बारे में देख रहा हूँ, नॉट इवन कॉलेज से, अपने लाइक अर्ली इयर्स, लाइक स्कूल के टाइम से ओके। ही स्टार्टअप्स ये सब चीजें चल रही है बहुत सारी, ठीक है? अब बाकी भी मैं स्टार्टअप्स में ही काम कर रहा हूँ, ये वाला जो माइलो है, राइट? इट्स राइट। इट्स अर्ली स्टेज ग्रोथ स्टार्टअप। सो छोटे से बहुत बड़ा हुआ है ये स्टार्टअप एकदम से। तो एंड अब इसके अंदर ना, सो स्टार्टअप डिसाइड करते हैं करना क्या है, तो दिस स्टार्टअप हैज मेड श्योर कि वी विल बी वेरी फास्ट, ठीक है, एंड वी आर वेरी सिक्योर इन मेकिंग मिस्टेक्स। तो हम गलतियां करेंगे, पर हम बहुत तेज दौड़ेंगे। तो यही चीज चल रही है, राइट। अब तेज दौड़ने में गलतियां निकलती हैं। सो फॉर अ साइकिल, मतलब जिस चीज को बाकी कंपनीज, एंड नॉट इवन जस्ट अदर स्टार्टअप्स, एक जनरल किसी कंपनी को एक जो टेक टेक लैंग्वेज में रिलीज करने में, लेट से कुछ चीज नई लॉन्च करने में महीना लगता होगा, ठीक है, वो हम हफ्ते में करते हैं, राइट? जिसको हफ्ता लगता राइट। होगा वो हम दिन में करते हैं, राइट? सो राइट। एंड इट इज नॉट जस्ट कि हमारा स्टार्टअप ऐसे कर रहा है, दिस इज like hundreds of thousands of other people who are doing this in like thousands of startups across, क्योंकि speed is the first currency। गलतियां तो ठीक हो जाएगी, एंड बिकॉज you're not even sure ना कि तुम जो चीज कर रहे हो वो सही है या नहीं है, तो rather than उसको टाइम लगा के, पैसे लगा के, एंड टाइम के साथ पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ पैसा। तो वो धीरे धीरे, rather than doing it very slowly and then deciding बाद में की चीज चली नहीं, लाइक लोगों को पसंद नहीं आई, यूजर लेवल पे नहीं चली, खुद के दिमाग में तो मस्त बैठ रही थी, तो वो ज्यादा फायदा नहीं करता। तो लोग तेज भागना प्रेफर करते हैं, तेज भागते हैं, गलतियां करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो वो चलता रहेगा, दिस इज वर्क प्रॉब्लम, अपने वर्क के अंदर ये प्रॉब्लम है। एंड देन मार्केट में भी होता है ये, लोग तेज भागने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। एक चीज है विच आई सी की प्रॉब्लम है, पता नहीं है, इज दिस क्या बोलते हैं, क्विक कॉमर्स वाली चीज है ना, फास्ट डिलीवरी वाली चीज है कि 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा ये। राइट। तो राइट। आई फेल्ट स्टार्टिंग में कि ये प्रॉब्लम है, जब ओके। 2-3 ब्रांड्स आए, उन्होंने बोला 5-10 मिनट में डिलीवर कर देंगे जो चाहिए आपको घर पे,
ठीक है, Right. अब उसके बेसिस पे सब लोग पीछे पड़ गए वहां पे। अब वो वाले जो ब्रांड्स थे मेन वाले, वो बैंकरप्ट हो रहे हैं बैठ के, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, वो जला जलू के बैठ गए हैं। अब जो दूसरे ब्रांड्स जिन्होंने अपना पूरा मॉडल चेंज कर दिया इनके पीछे, वो सोच रहे हैं कि ये क्या कर दिया, हम तो गंदी मार्केट में घुस गए। वो Right. ये एंड दिस क्विक कॉमर्स भी बहुत पुराना है, इट्स नॉट वेरी न्यू, इट्स जस्ट कि बीच बीच में लोग आके करते रहते हैं नई चीज। अभी जैसे अभी का जो स्टार्टअप फेयर चल रहा है दुनिया का, वो D2C है, डायरेक्ट D2C सारे हर जगह लोग D2C की बातें करते हैं, राइट? वी आर आल्सो D2C, हम एक पार्ट D2C है मान लो। तो पर Right. पहले बहुत सारे होते थे, सोशल कॉमर्स होता था एक कि अपने इंस्टाग्राम उधर से कमाओ, राइट? ऐसे मतलब बहुत सारे बीच बीच में बबल्स आए, राइट? तो वो वही चीज है। Right. तो वो बबल्स क्यों आए, लोग स्पीड में भाग रहे थे, उन्होंने बोला इसको बड़ा कर देंगे, हाइप करा, बड़ा किया, पैसे लगाए और फिर वो फट गया ऊपर, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब उसके बेसिस पे जो 100-200 लोग और बैठ गए हैं वहां पे। अब जैसे एक सबसे बड़ा बबल है इन्फ्लुएंसर्स वाला, इन्फ्लुएंसर वाला बबल बहुत जल्दी फटेगा और गंदा फटेगा क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। इट इज अ मार्केटिंग टेक्निक ना, मार्केटिंग चैनल है। टीवी जैसा ही है, टीवी को 100 साल 200 साल लग गए हटने में, ठीक है, पर इन्फ्लुएंसर्स 50 साल के अंदर हट जाएंगे। सो जो भी ब्रांड्स अब बैठ गए हैं या फिर जो कंपनी एजेंसीज बैठ गई ना इन्फ्लुएंसर्स के दम पे, अगर वो इवॉल्व नहीं करेंगे तो वो हो जाएंगे। दिस इज Right. माय गट एंड आई फील ये क्योंकि दिस इज पूरा यूजर लेवल अंडरस्टैंडिंग का है कि भाई उनको अब नई जनरेशन को नहीं समझ आता, नहीं फर्क पड़ता है इन्फ्लुएंसर से, लाइक एटलीस्ट वो मैक्रो से है, राइट? माइक्रो नैनो से तो पड़ रहा है पर उनसे नहीं फर्क पड़ता। तो दिस इज सिमिलर ही है। तो वो दिस विल this is a precautionary thing। और I don't support in the sense कि नहीं करना चाहिए, पर speed is again a thing that I value more। मतलब young start करना, जल्दी करना, बहुत पहले करना, speed में करना, this is something I value more than doing slowly and more quality। and slowly and more quality आता बड़े organizations में ही है क्योंकि उनके पास मतलब उनके पास ना वो होती है जो मुझे बड़ी गंदी लगती है, इसकी इज्जत है जो खो नहीं सकते। पर Right. किसी को इज्जत की क्यों प्रॉब्लम होगी अगर तुम उनके लिए फुल मेहनत कर रहे हो, कि तुमने कुछ गलती कर दी पर गलती से कुछ होने वाला नहीं है, बस गलती गंदी दिख रही है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा यार? सो दैट Right. इज समथिंग को बड़ी कंपनी ज्यादा मैटर करती है उनको करने के लिए, दैट्स व्हाई दे हैव लाइक प्रोटोकॉल्स में टाइम लगता है, लोग लगते हैं, तो वहां पे वो उधर काम क्लोज टू परफेक्ट आता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ आउटकम, इन टर्म्स ऑफ हैविंग नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पे काम क्लोज टू परफेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे तो बहुत सारी इलीगल प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ से पता ही नहीं था इलीगल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, आ गई बस किसी ने मार दिया वहां पे, तो वो सॉल्व हो Right. रही है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें चलती है, राइट? आई Also, अगर नवीन ने तो इन लिंक्डइन खोला होगा, कल एक और नई चीज आ रखी है मेरे, अगर तूने नहीं देखा तो डेट इज फाइन, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं बहुत ये हर 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ नया आता है इस दुनिया में। right. Right. एंड परितोष, क्योंकि हर हफ्ते नया कुछ आ रहा है, राइट? इवन हर डे आ रहा है, हर घंटे आ रहा है, राइट? बट वी हैव अ लिमिटेशन, राइट? वी आर नॉट डिजाइंड कि हम हर मिनट, हर घंटे बैठ के नई चीजें ट्रैक कर सकते, राइट? And now there is a other side of it. You will miss out on things as far as the technology is concerned, like as far as the business is are concerned in a economy like India, जहाँ पे नया constantly कुछ ना कुछ आ रहा है, evolve हो रहा है, right? So where do you find the balance? आप लोग हर रोज बैठ के नई चीजें टेस्ट आउट नहीं कर सकते, उनके बारे में पढ़ नहीं सकते, अप टू डेट रह सकते हो, बट यू कांट एक्सपेरिमेंट एट दैट फ्रीक्वेंसी, राइट? ऑल्सो ऑन द अदर साइड यू डू नॉट वांट टू लूज आउट की द अपॉर्चुनिटी की, वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यू नो बाकी के उठा लेंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। वेयर डू यू फाइंड द बैलेंस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब इसका आंसर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रोडक्ट थ्योरी है छोटी सी। राइस राइस होता है ना अपना, पता है यू दैट रीच इम्पैक्ट, डोंट नो, मतलब राइट। ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं, ये लगा लो हर चीज पे, उससे फिगर आउट हो जाता है क्या चीज ज्यादा मैटर करती है क्या नहीं करती है। सो दिस इज पीपल यूज टू डू, राइट, फॉर एनी डिसीजन इन बिजनेस, तो ये यूज करते हैं मोस्टली, राइस लगा लेते हैं। इसके और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बने हुए हैं जिसमें यू क्लब ऑन 4-5 मोर फैक्टर्स, so राइट। इसकी just list out all these 5-10 things जो let's say इस वीक में नहीं आई है, उसके आगे राइस लगा दो, right? तो ये प्रोडक्ट ओके। मैनेजर्स यूज करते हैं इन द सेंस कि बहुत सारे लोग हैं, पूरी कंपनी बोल रही है ये बना दो ये बना दो ये बना दो ये बना दो, मतलब सब लोग लगे हुए हैं, उनके पास सबकी अलग राइट। अलग प्रायोरिटीज हैं, right? So and this is a good example which comes from the organization that I currently work in, because we are like a full stack, so we don't focus on one thing। हमने सिर्फ टारगेट ग्रुप पे फोकस करा है, बाकी वी आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। so there is a content, there is a community, there is a लोग टूल्स बना रहे हैं, इधर AI/ML से कुछ चल रहा है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, खुद के सर्विसेज बेच रहे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, सब कुछ ही है, मतलब इट्स अ होल एनवायरनमेंट इन वन। अब उसके अंदर क्या है कि
हर टीम को लगता है उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली लगना चाहिए उसमें, पर वी आर अ लीन टीम आल्सो, तो स्टैग्नेंट रहते हैं इन द सेंस, ऐसे नहीं है हमारे पास 1000 लोग हैं. सो इन Right. फैक्ट माय लाइक द प्रोडक्ट टीम दैट वर्क्स ओवर हियर is what 4 people full time and then 5 or 4 interns, so 9 people who are like basically working for 10 million people, 10 million लोगों के लिए काम कर Right. रहे हैं नॉर्मल. तो बस ये Right. हर चीज आती है, उस पे प्रायोरिटाइजेशन करनी है, तो वो राइस लगा लेते हैं उस पे थोड़ा सा बैठ के, तो प्रोडक्ट मैनेजर जो भी है, सो वहां पे राइस लगा लेता है, उसको पता लग जाता है क्या करना है क्या. एंड उसका जो आउटकम आता है मेनली यही आता है कि किस चीज का इम्पैक्ट सबसे जल्दी और ज्यादा होएगा. अगेन दिस इज व्हाट यू प्रेफर, राइट? सो स्पीड है या फिर इम्पैक्ट ज्यादा है. तो अभी रिसेंटली आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, और उनसे ना थोड़ा 1 महीने साथ बैठ के सीखने काम करने का मिला था, so through my company only. So I figured out Okay. whatever these guys do, they do for impact in large, right? They don't, उनको स्पीड से मैटर नहीं करता है. तो जैसे उनका एक प्रोजेक्ट था which they have been working for past 5 साल पहले डिसाइड करा था करने का, नहीं 3 साल पहले डिसाइड करा था करने का, 2 साल पेंडिंग है, 3 साल हो गया उस चीज को, और वो अभी तक कर रहे हैं उसको. वो सेम Okay. प्रोजेक्ट अगर मैं यहाँ करने लगूँ तो मुझे 15-20 दिन भी नहीं मिलेंगे वो करने को, बोले 15-20 दिन में कर दो इसको, राइट? सेम. पर ये कि उनको इम्पैक्ट पूरी मतलब करना है, उनका 1% इम्पैक्ट इज इक्वल टू माई 100% इम्पैक्ट. सो दे विल ऑलवेज डू दिस लाइक प्रॉपरली. एंड वो तो फिर उनका एक अलग वहां पे चले जाता है टेंजेंट कि भाई हमें अपना तो टाइम मैटर नहीं करता, अपने इम्पैक्ट से मैटर करता है, राइट? फॉर अस टाइम मैटर्स मोर. तो इसका बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और किसी को ज्यादा वेटेज देनी थी तो अपने वो निकल जाता है. वो वेरी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इस चीज के अंदर कोई इतना है नहीं खास. एंड सो वही है. बाकी एक अप टू डेट वाली चीज ये है कि आई जस्ट फॉलो फोकस थिंग्स, डोंट Okay, फॉलो Paritosh, एवरीथिंग दुनिया में. we are low on time for this particular